throughout our life, we spend most of the time in the search of happiness. Many times we become happy, but most of the time it has been seen, ज़्यादातर time लोग ऐसा देखते हैं कि वो लोग दुख में थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, और ऐसा भी देखा गया है कि बहुत समय लोग हैप्पी नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि वो लोग हैप्पी है। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि जैसे एक वर्ड है हैप्पी का ही, एक बहुत मिला जुला वर्ड है, वो है रिलीफ, और एक होता है हैप्पीनेस, और दोनों में बहुत डिफरेंस है। रिलीफ एंड हैप्पीनेस, देयर इज अ बिग डिफरेंस। कोई है जो बता पाएगा क्या डिफरेंस है? Maybe we are busy in the whole day, but still we are happy because we are doing our passion. But sometimes it happens that relief means we are into something. Relief is the thing when we get over from some problem, and happiness is we are not worried about the situation and always try to remain happy. It is our decision. And relief is something when situation comes into our favor, we get relief from that situation and try to feel happy, and the thing without having any burden in our head, like this kind of thing. Okay. Yeah, Devashish, what do you feel? Happiness and relief. Relief means relaxing. Relief is something released from something, like released from anxiety, relief from some distress. This thing, relief. And happiness is something which comes from inside after doing something successfully, or after ending some successful event, which we derive, that is happiness. Okay, thank you very much. Right now we will talk something related to happiness, because ultimately we all want happiness. यहाँ पे कोई है जिसको खुशी नहीं चाहिए हो तो प्लीज हाथ खड़ा करें। Okay, मुझे नहीं लगता। या सोनी जी, आप खुश हो? कितना खुश हो आप, ये सोचिए। ओके, चलिए आगे जाके देखते हैं कि आज का टॉपिक इज मोर अबाउट लर्निंग, और किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज दे शुड आस्क। There is a difference between comfort and happiness. There's a comfort zone, you can see in the picture, आप लोग पिक्चर में देख रहे हो, that comfort zone, ये इंसान comfort zone से निकल के अपने इस ड्रीम लाइफ के तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। सर ये गार्गेंचुअल लेवल पे है तो अभी हम yes, we all are having into a GPA level right now. So yes, what I was talking about, comfort zone to the dream level. But before that, I would like to ask you this, what do you understand by comfort zone? आप comfort zone के बारे में क्या जानते हो? Comfort zone है क्या चीज? I really want to know this from you all. Yes. Can I? Yeah, please, Dipanshi. Sir, Comfort zone means a shell in which the shell of the family where everyone is here to care for us, but where we just coming out of the comfort zone, then we have to then we will have to fight with our struggles by ourselves only. Okay, fine. Anyone? Shivangi, what do you think by comfort zone? इसका मतलब क्या होता है? What do you think? Sir, when we are surrounded with the things which are comfortable for us, I mean, suppose if I give an example of my music, then I would say that if I'm comfortable with any genre of the song, but I don't even recognize that I should opt some another song also. So what I am doing right now is I am doing whatever the things which is in my comfort zone, but I am not doing the thing which is not in my comfort zone.
So I think people should I mean do things that is beyond their comfort zone also. So that's the thing of comfort zone. Okay. As Yeah, for me. Devashish, what do you feel about comfort zone? Comfort zone is basically the greatest envy of us, right? The Okay. people, uh, I I personally feel that because we'll have to take out ourselves from the comfort zone. Otherwise, we won't be able to progress. We won't be able to go ahead anymore, any further. Because comfort zone is that zone which keeps us sitting, which keeps us what to say stagnant. Because comfort zone is basically a satisfied area where you feel where your maximum satisfaction level is there. Suppose sofa or couch is there, you are feeling comfortable, you don't know, but entire day you may spend over there. But the thing is, you will have to come out from that zone, you will have to work hard, and so then only you will be able to progress, then you will be able to go ahead. Otherwise, this comfort zone will kill you. Okay. Thank you. Thank you very much. Okay, let's see. Move to the point. You all have given very good ideas about comfort zone. Now I want to be more specific. मैं थोड़ा specific होके बात करना चाहता हूँ कि ये comfort zone है क्या? I guess ये आपको पता होगा Maslow's hierarchies. ये देखा है कभी आपने? Yes, मैंने देखा है. के सर इसके ऊपर क्लास भी ले चुके हैं. हाँ, के सर ने भी शायद क्लास लिया होगा. This is बहुत बढ़िया Maslow's सर. hierarchy of needs. Like पहला है physiological, रोटी कपड़ा मकान. Yes. Then safety. सेफ्टी के लिए मनी चाहिए, यू नो, थोड़ा घर चाहिए, घर में यू नो सेफ्टी चाहिए ताकि यू नो कोई बाहर से हमारे सेफ्टी जोन में नहीं आ पाए. थोड़ा ऊपर जाएंगे तो लव एंड बिलोंगिंग, सारे परिवार वाले हमें लव मिले. देन सेल्फ esteem is where we crave for respect, self respect, the respect from others. एंड उसके ऊपर भी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ये धरती पे जन्म हुआ है ना, ये सार्थक हुआ. मतलब आई हैव कम फॉर अ रीजन एंड दैट आई हैव डन इन माय लाइफ. बहुत लोग दुनिया में आते हैं, घर करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, बट दे नेवर थिंक अबाउट कि मुझे दुनिया में दुनिया के लोगों के लिए कुछ करना है. लाइक गार्गेंचुअन पर्सनालिटी एडवांटेज. हम लोग सीख तो सभी रहे हैं, लेकिन कितने लोग इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है. पहली बात, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आपके लिए इस एडवांटेज को पाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये गार्गेंचुअन एडवांटेज के लिए you have to move yourself every time, you have to act yourself every time. But अगर आपके दिमाग में है कि मेरे को एक ऐसे लेवल में जाना है जहां पे लोग मुझे पहचाने, मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊं, so that's basically the self actualization level. वो जो लेवल है ना, there you feel the ultimate happiness. The ultimate happiness. आपको लगता है कि yes, I have done something for people. वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल, द टॉपेस्ट लेवल. Sir, You can see this pronunciation. self actualization. So what will be the actual pronunciation? Hierarchy or hierarchy? What is the actual pronunciation? Hierarchy. See, hierarchy, we say hierarchy, we say it's basically hierarchy. So this is called Maslow's hierarchy of needs. नॉर्मली देखा गया है कंफर्ट जोन क्या होता है. कंफर्ट जोन होता है यहाँ तक, जब लोगों को घर मिल जाता है, सेफ्टी रहता है और प्यार वगैरह रिलेशनशिप आ जाता है ना, उसके बाद वो ऊपर और नहीं जाना चाहते. उनको लगता है कि इट्स ओके, फाइन, काम हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, घर चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक. तो दिस इज अ लेवल वेयर कंफर्ट जोन एंड्स. अब इसके ऊपर अगर आपको जाना है, यू नो, यू रियली वांट people to know you, if you really want people to respect you,
If you really want कि आपको आगे जाना है और दुनिया के लिए कुछ करना है, then from self-esteem level to self-actualization, ये थोड़ा सा uncomfortable zone है. ये जो इंसान अभी आप देख रहे हो ये चढ़ रहा है ना, ये अभी कंफर्ट जोन से एक अपने ड्रीम लेवल में जाने की कोशिश कर रहा है, जो बहुत ज्यादा हार्ड है. हार्ड मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, बट यस इट इज डिफिकल्ट. बहुत लोग सोचते हैं कि क्या फायदा जाके, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि जब तक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव नहीं किया, तब तक आई थिंक मेरा इस धरती पे रहने की कोई मतलब ही नहीं है. मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो बस अपने लिए जी रहा हूँ. What I am doing it for people. So this is called relief point. Comfort zone तक जो लोग है ना, उनको रिलीफ मिलता है, उनको सुकून मिलता है, उनको चाहिए होता है कुछ और उनको वो मिल जाता है. वो छोटा सा गोल होता है, बस मेरे को एक जॉब चाहिए, मिल गया, चलो भाई सुकून मिल गया, मैंने जॉब चाहा था मुझे मिल गया. मेरी एक बीवी हो, सुंदर सी बीवी मिल जाती है, तो चलो भाई सुकून मिल गया, बहुत अच्छा है लाइफ. बच्चा चाहिए, बच्चा मिल गया, तो सुकून वाली लाइफ होती है इस लव एंड बिलोंगिंग तक. लेकिन इसके ऊपर जो उठता है ना, तब बेसिकली जो हैप्पीनेस के तरफ वो आगे बढ़ता है. that's basically the happiness point when you really work for people. जब आप खुद के लिए काम करते हो, लोगों के लिए काम करते हो, तभी आप उस हैप्पीनेस पॉइंट में अल्टीमेटली पहुंचते हो. सो वही मैं बोल रहा हूँ कि जीपीए बहुत लोगों के लिए काम नहीं करेगा अगर वो उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल में नहीं पहुंचना चाहते. सिर्फ घर पे रह के काम करके हम उस लेवल में नहीं जा सकते. हमारा पर्पस बहुत बड़ा होना चाहिए. आवर पर्पस शुड बी मच बिगर. Yeah, you see, comfort is indifference, happiness is fulfilling. What does it mean, Rishita? Yes, sir. Comfort is indifference, happiness is fulfilling. So happiness is fulfilling our goal actually, which what we want to conquer over the self-actualization. And comfort zone, as you said, that to get something, to get the small goals whatever we fixed, and do not have any query to move further. Okay. Yes, Shivangi. I want more specific answer to this. Comfort is indifference, happiness is fulfilling. Yeah, Debashish, what do you understand by the picture? Comfort. When we're talking about comfort, it means that we are living in a state where we have everyone to conquer ourselves. But happiness is when we are working for our prestige, our own self-esteem, our own self reputation. Okay, thank you, my dear friends. Fine. Sir, Uh, as per me, Rishita sir. Yeah, So Rishita. as written here, that comfort is indifference, that in the comfort level, people are indifferent between what they have and what they want. If they get something in that is the relief point, and the comfort zone ends in that love and belongings. No, so they are indifferent between where they are and that self actualization point. There is no difference between them. And happiness is fulfilling the self actualization, actually happiness. Okay. See, you people are right. Here, I would like to tell you. Yeah, Debashish, you want to say something? So here, what I understand, what I feel, comfort is indifference means when we reach at the comfort level, what I have said also earlier, that the urge of doing something vanishes. That means I do not feel any more thing, but the satisfaction level comes there. But happiness is fulfilling. When we fulfill anything, when we just go to the last point, the ending point of anything, and that whatever we derive, that is happiness. The final thing, the last thing is happiness.
after completion of the work. But and on the other hand, comfort is indifferent. The urge, there is no more urge comes because Okay. we are the comfort zone. Absolutely right. Everyone, you people are right. But I want to be more specific into this. Comfort is indifference means people who are into comfort zone, it has been seen, they don't have love and respect for others. They don't feel for others. But people who are happy, it has been seen, they deal with, they love with people, they be so happy with people, they respect people. For them, people are so important. Comfort is indifference. The meaning of indifference is having no interest in other people. But happiness is fulfilling. Yes, Dipansh. According to me, it is not important that if we are in a comfort level, we are not concerned about other people. We are living in a society, it means we are connected to them. Yeah, Interdependence are there. So how can we live without respecting others, and how can we live uh, without thinking about others? see, some my neighbor is there, I talk good with them, everything. I'm not talking about, see, for me respecting and loving means you really want to do something for them. They are important to you. It's not about meeting, saying hi, talking. I'm not talking in that level. I'm talking into that fulfilling level. It has been seen. आजकल कोई अगर पड़ोस से आता है ना, तो बहुत, अभी अगर आप अभी के सिचुएशन छोड़िए, नॉर्मली अगर कोई बाहर से आता है घर पे, तो एक समय था जब लोगों को अच्छा लगता है, लगता था कि अरे यार आइए आइए। अभी कोई घर पे आता है ना, तो लोगों को वो फीलिंग नहीं आती। अरे यार ये आ गया, वो बोलता नहीं है लेकिन दिमाग में चलता है। पीपल ऑफ दोज एजेस, लाइक मेरे दादाजी के लिए, उनको ना खिलाने में, हॉस्पिटैलिटी में बहुत अच्छा लगता था। बट आजकल चीजें अलग हो गई हैं। पीपल हैव बिकम सेल्फिश। आप न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा देखोगे, आप ज्वाइंट फैमिलीज कम देखोगे। क्यों? क्योंकि लोग अभी सबको एकदम अलग से समेट के अपना एक अलग कंफर्ट जोन बना रहे हैं। People are not thinking about others. So here what I mean to say is not about, मतलब मेरे बात को आप थोड़ा से जेन्युइनली ले लिए। मैं थोड़े से हाई क्लास लेवल में बोलने की कोशिश किया कि जो लोग मतलब आज लेजेंडरी है ना, वो कुछ करना चाहते हैं लोगों के लिए। उनका एक अलग एक लेवल होता है कि मुझे हर लोगों के लिए कुछ करना है, उसके लिए मुझे उस लेवल में जाना है। सपोज मैं किसी इंसान के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मैं कंफर्ट जोन में हूँ, मेरी जो सैलरी है, मेरा घर चलता है उससे, मैं लोगों के लिए चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर मैं सब कुछ समेट के बैठा हूं। नहीं, मैं इससे ज्यादा और नहीं करूंगा। अगर मुझे लोगों को हेल्प करना है ना, तो आई हैव टू डू समथिंग to earn maximum and to give opportunity to those people and to do something for society. आप सोचो ना, आप जो भी कमाते हो या जो भी कमाते हो, आप कितना सोचते हो कि मेरे को बाहर के लिए करना है? Most of the people, they think about their family, they don't think about others. मैं ये बोल रहा हूँ। See, जब आप दूसरे को हंसाओगे ना, तब वो जो फुलफिलमेंट आप फील करोगे, that is important. हम लोग क्या है, हम लोग अपने घर में खुश हैं, सबके साथ खुश हैं, बट इम्पोर्टेंट है कि हम बाहर की दुनिया देख रहे हैं कि नहीं। दैट इज इम्पोर्टेंट। मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ यहाँ। ओके, बट यस, इट इज गुड, वी टॉक एंड वी, बिकॉज कभी कभी कुछ मीनिंग या कुछ अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाता है जब हम चीजों को बात करते हैं। लेकिन कंफर्ट इज इनडिफरेंस। देखा गया है कि जो लोग कंफर्टेबल जोन में होते हैं ना, वो लोगों के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। मैं नहीं बोल रहा हूँ वो लोग खराब होते हैं, वो लोग दुनिया के लिए कर नहीं पाते, लिमिटेशंस में रहते हैं। लेकिन जो लोग हैप्पी रहते हैं, उनके पास अगर कम भी होता है ना, तो सोचते हैं कि मैं बांट के खाऊं। दिस इज द मैजिक ऑफ पीपल। अब बहुत लोग जो कंफर्ट जोन में है, उनको लगता है कि जब मेरे पास बहुत होगा ना, तब मैं बांटूंगा।
जो लोग हैप्पी होते हैं ना वो सोचते हैं यार जो है उसी को बांट के खाए. देयर इज अ डिफरेंस. कंफर्ट इज नॉन चैलेंज, हैप्पीनेस इज एक्साइटिंग. जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं ना वो लोग एंथुजियास्टिक नहीं होते, काफी मतलब एकदम शांत एक नेचर रहता है, एकदम उस एनर्जी कम रहता है. Sir, meaning of non-challenge means that not enthusiastic. Not so exciting, kind of a very static personality. Excitement ज्यादा नहीं है उसके लाइफ में. नॉन चैलेंज नो मतलब उनको लग रहा है कि दे आर हैप्पी, बट उनके अगर आप उनको सच में देखोगे ना कोई एंथू नहीं होता है कि लाइफ में कुछ करना है. हाँ जो है ठीक है. आप उनसे पूछोगे ना हे कैसे हो, चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, यू नो चल रहा है. ये हम लोग, ये ना एक जनरल टेंडेंसी हो गया पीपल का, क्योंकि हम लोग जब भी पूछते हैं कैसे हो तो वो बोला हाँ चल रहा है. अगर उन लोग, अगर कोई पूछ ले ना ऐसा क्यों चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, बोलते नहीं कुछ नहीं प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी चल रहा है. तो हमने एक बार एक आदमी से पूछ लिया कि हुआ क्या है, बोले नहीं कुछ नहीं है. अगर बोल देते हैं कि ज्यादा खुश है बा कुछ है तो नजर लग जाता है. आई सेड व्हाट डज इट मीन एक्चुअली. तो वो It ऐसा happens. मतलब माइंडसेट चलता रहता है सर. नहीं बात यहाँ पे दूसरे की नहीं, बात यहाँ पे हमारी है कि हम क्या हमारी है, हाँ हाँ. लेकिन हम अब क्या तो सोचते मैं हैं. अगर कभी प्रॉब्लम फेस भी करती हूँ तो मैं अब वही बोलती हूँ, मैं मतलब बहुत अच्छा हूँ. That's एंड आई good. नो मैजिक ऑफ दिस क्लास एंड यू आल्सो. Okay. Now see, comfort is ambivalence. Happiness is a surety. Comfort is ambivalence. What is ambivalence? Anyone? सर इज Ambi इट मतलब क्या सिमिलर होता है? टू एम्बिवर्ट एंड समथिंग? Ambi means two. जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं ना वो लोग ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं. जो लोग कंफर्टेबल जोन में होते हैं ना वो हमेशा सोचते हैं ये करूं कि मैं ये करूं. करता कुछ नहीं है लेकिन सोचते जरूर है. वो अपना टाइम वेस्ट जरूर करेंगे ये सोचने में कि मैं ये करूं कि मैं ये करूं, मैं जो कर रहा हूं उसी में रहूं कि मैं आगे की वो भी करूं. लोग बोल रहे हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटी है लेकिन मैं तो जॉब में ठीक हूं, करूं क्या उसको. they never do anything but they always calculate कि should I do this or should I not do this. they are most of the time they are confusing. और ये comfort zone में ही होता है. people who are happy they are sure about their life. करना है कि नहीं करना है, करना है तो आगे जाना है, अगर नहीं करना है तो पहले ही अपने आप को पीछे ले आना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना. सर कंफर्ट जोन का आदमी कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं. हाँ they never experiment of course but they think हाँ कि मैं should I experiment or not. they plan. हाँ आप ये नहीं बोल सकते they don't plan. they plan, they talk But but they they do never not go ahead. execute. They do not execute. अरे ठीक है प्लान तो है ना, बोल तो सकते हैं कि प्लान ठीक है, किए हैं. चल रहा है चल रहा है. हाँ तो ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि उनको वही प्लान करने में अच्छा लगता है. ओके. happiness, comfort is stagnant, happiness is always growing. It's always grows. Stagnant मतलब रुका हुआ. Comfort zone people they are stagnant people. Should I go ahead? Yes. Comfort is easy, happiness is worthwhile. Comfortable चाहिए लाइफ तो बेसिकली ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. बट अगर आपको लाइफ को और ज्यादा वर्थवाइल बनाना है, यूजफुल बनाना है, आपको लगता है कि एक रीजन देना है अपने लाइफ को कि दिस इज द रीजन फॉर विच आई एम लिविंग, सो आपको हैप्पीनेस को टारगेट करना पड़ेगा. कंफर्ट जोन को टारगेट करके कोई फायदा नहीं. कंफर्ट जोन तो ऐसे ही मिल जाएगा. Legends believe in happiness. So what? There were or are hard times. These legends, they always believe in happiness. ऐसा नहीं कि उनके लाइफ में कोई हार्ड टाइम्स नहीं आए, but they always believe that I have to strive for happiness. और happiness उनको कोई easy लाइफ में नहीं मिला. They did something for it. They paid price for that.
all the celebrities come under self-actualization level. It depends. All the celebrities, they come into that level. It depends on what they have done to reach that position. What they have done to reach that position. आज 1 करोड़ रुपए दीपांशी आपके लिए कितना अहमियत रखता है अगर आपको मिलता है? Actually, it is important, but there is more priorities than it. The basically money is not the first नहीं नहीं, priority. मैं वो नहीं, आप अभी ज्यादा इसमें मत सोचिए. अभी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं किसी भी सोर्स से, कोई पॉजिटिव सोर्स से, आपको It कितना अच्छा matters. लगेगा? It matters a It will lot. change your life or not? Yes. Yes. लेकिन यही 1 करोड़ रुपए अगर अंबानी के लड़के को मिलता है, so will that make any difference in his life? So it's not about मेरे को 1 करोड़ मिला. बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किसको 1 करोड़ मिला. जिसके पास कुछ नहीं था उसको, या जिसके पास ऑलरेडी था उसको. तो इसीलिए हर सेलिब्रिटी को वो फीलिंग नहीं आता होगा कि मैंने कुछ किया है अपने लाइफ में. जिनको वो सफर, वो जो जर्नी वहां तक पहुंचने में लगा, उनको जितना मजा आएगा ना, एक नॉर्मल इंसान, एक नेपोटिज्म का एग्जांपल ले लीजिए. अगर मेरे पिताजी एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो मेरे लिए जो सफर है ना वो इजी होगा. भले ही मुझे बहुत पॉपुलैरिटी मिलेगा, लेकिन वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं होगा कि आई हैव डन समथिंग. लेकिन जो लोग एकदम विदाउट एनी किसी के सोर्स से वहां पहुंचते हैं ना, उनको वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है. सो इट्स नॉट अबाउट द पोजीशन, it's about how I reach that position. That is important. और जो लोग मतलब उस वहां से पहुंचते हैं ना, वो लोग का अलग ही माइंडसेट होता है. इसीलिए आप देखोगे अगर कोई लॉटरी वाले तो देखे होंगे बहुत समय, लॉटरी जो लोग बेचते हैं. कभी एक समय में मुझे सुनने में आया कि एक लॉटरी वाले को लॉटरी लग गया 79 और 80 लाख का. अब वो क्या करेगा? अब उसको तो कुछ पता नहीं. पैसे को तो मैनेज भी करना पड़ेगा, पैसा आने से तो नहीं होगा. फिर पता नहीं वो लॉटरी, वो पूरा दुकान, मैं सुना कि दुकान सब छोड़ के वो चला गया. कहाँ गया पता नहीं, लेकिन फिर 3 महीने बाद फिर आ गया, लॉटरी बेच रहा है. अब पता नहीं 3 महीने में उसके सारे पैसे खत्म हो गए. इवन केबीसी में एक इंसान है जिसने 5 करोड़ जीता था. आज वो पाई के मोहताज है, आज उसके पास पैसा नहीं है. It's not about having money, it's about how we manage money. That is also important. Okay, let's go ahead. So it has how ये hard time जो होता है ना, बहुत लोग जो उस हैप्पीनेस लेवल में जाते हैं, उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जाते हैं, वो उनको ये हार्ड टाइम को झेलना पड़ता ही है. बट वो हार्ड टाइम को भी ना खुशी खुशी झेलते हैं. दैट इज इम्पोर्टेंट. बहुत लोग रोते रोते अपने हार्ड टाइम को पास करते हैं, कुछ लोग हंसते हंसते अपने हार्ड टाइम को पार करते हैं. या देवाशीष, यू नो दिस जेंटलमैन? या ऋषिता, यू नो हिम? दीपांशी? No sir, I don't know. No, I don't know. हाँ, क्योंकि इस वक्त उसे कोई नहीं पहचानता था, इसीलिए आपने भी नहीं पहचाना. जब मैं नाम लूंगा तो बोलोगे हाँ, ही इज स्टीव जॉब्स. जब उन्होंने सो व्हाट जो है, सो व्हाट जो है, ये हार्ड टाइम्स के बाद में आने से ठीक लगता कि नहीं लगता? सो व्हाट where there are hard times, or where there are hard times, so what? Okay, so what? There were or there are hard times. There were hard times, so what? तो आगे लगाओ पीछे लगाओ, so what? नहीं, see, no, thank you for your suggestion, but I'll think on this. But so what? It's not suggestion, it's it's okay. Opinions are always welcome, but I'll see to it. When I was making it, I didn't feel in that way.
but okay, as you are, for your opinion, I'll definitely think about it. Okay, so Thank guys, you. everyone, they had these hard times, you know. They were legends in their times. Even till now, we feel they are. All legends were different. Their stories were different too, except their attitude. So they were different. Their stories were different, but उनका attitude कहीं ना कहीं common था. क्या attitude हो रहा होगा उनका? Yes, Rishita. What would have been the attitude of them? उनको उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा जो उन्होंने इतने hard time को face कर पाया? So attitude to वही रहा होगा कि try me God. Not they are not the persons who always say that why me God. Instead they used to say try me God. Whatever the situation will come, I will handle it. So this kind of attitude was there. You know, they knew one secret. And what was the secret, you know? They never stayed their whole lives inside comfort zone. They always pushed themselves. वो कोई भी जिनको भी हमने अभी अभी देखा, वो लोग जिस जोन में थे वहां से कुछ हमेशा ज्यादा करना चाहते थे. They always wanted to come out from their comfort zone. They always pushed themselves from their comfort zone and they tried to reach to their life of their dreams. So आप देखोगे कैसे कि ये लोग पुश करते हैं हमेशा. They always try to push. My question is that happiness किस में है? पुश करके अपने ड्रीम में अचीव करने में है कि पुश करना ही एक हैप्पीनेस है? तो पुश करना ही एक हैप्पीनेस है मेरे लिए. यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत लोग सोचते हैं पुश करके जब मैं वहां पहुंचूंगा दैट इज हैप्पीनेस, बट दीज लेजेंड्स दे नो कि if I'm trying, if I'm pushing itself, it's a happiness because वो push करने में भी मजा आ रहा है मेरे को. Yes. अगर पुश करने को हम लोग हैप्पीनेस सोचेंगे ना तो ज्यादा लोग आज हैप्पी होंगे. Yes, sir. क्योंकि क्या हो रहा है पुश करने के टाइम ना हमारा शक्ल हम लोग पूरा बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जा रहे हैं. Yes. जब हम लोग पुश कर रहे हैं, जब हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं और अल्टीमेटली जब मिलता है ना सक्सेस, तब हम लोग को लगता है हाँ चलो यार मिल गया एटलीस्ट. तो ये हैप्पीनेस नहीं है. दिस इज नॉट हैप्पीनेस, दिस इज रिलीफ. अगेन सुकून मिलना कि अरे भाई इतना मैंने हार्ड वर्क किया, चलो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो मिला. ओके सो गाइज, आज हमारा जो टॉपिक है, अभी इतने देर में हम लोग ने अपने मेन टॉपिक पे हम आ रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ जो ये है, one day your picture will also be shown like this. You will be the next legend. You never know. सचिन को थोड़ी पता था कि मैं उनका फोटो लेके अभी दिखाऊंगा यहाँ पे. किसी को ही पता नहीं था, राइट? क्या पता एक दिन आपका भी ऐसा ही पिक्चर लोग क्लास में यूज कर, या मैं ही यूज करूँ. I'll be the first person to do that. Okay. तो ये बोल के ना जो खुशी दिल में महसूस हो रहा है आपको पता नहीं है. That is happiness, you know, that is happiness. That is happiness. Okay. So guys, आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत देर में आया, लेकिन जो भी हो, ये टॉपिक है हैप्पीनेस हाइपोथेसिस. बेसिकली ये एक टॉपिक है जिनको लिखा गया था बाय जॉनथन हाइट. सो हैप्पीनेस हाइपोथेसिस, ये कोई सीक्रेट नहीं है कि आप कैसे हैप्पी बनोगे. ये कुछ कुछ हाइपोथेसिस है, कुछ ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हर इंसान को जाननी चाहिए अगर वो इस हैप्पीनेस के जर्नी को लीड करना चाहते हैं. ओके सो कैन वी गो अहेड? Yes, sir. Okay, fine, let's go ahead then.
The first one, the first big idea is the divided self. Right itself. We should know this. ये कोई secret नहीं है how to be happy. This is one thesis, you know, this is one topic which will tell you why people become happy, why people they don't become happy. Let's see. Elephant and the rider. As per this thesis, it tells, you know, there is an internal conflict between body and mind. Body, mind needs to work together. ये जो राइडर है ना, ये है हम, और ये जो हाथी है ना, ये है हमारी बॉडी. सो बॉडी कहीं और जाना चाहता है और माइंड कहीं और जाना चाहता है, और प्रॉब्लम तभी होता है. दिस इज द डिवाइडेड सेल्फ. हमको चाहिए मोनोगैमी. मोनोगैमी का मतलब क्या होता है? एक. मोनोगैमी का मतलब होता है एक इंसान के साथ रिश्ता रखना. ये हमारा दिमाग बोलता है, लेकिन हमारी बॉडी बोलती है नहीं, और भी चाहिए. वी वांट गुड हेल्थ. हमारा दिमाग बोलता है कि हमें हेल्थ अच्छा चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी बोलती है नहीं, थोड़ा मिठाई खा ले, थोड़ा फैट, यू नो, थोड़ा फैट आइटम कुछ खा ले, कुछ सॉल्ट ले ले. सो देयर इज ऑलवेज अ डिवाइडेड सेल्फ बिटवीन माइंड एंड बॉडी. दिमाग कुछ चाहता है और दिल कुछ चाहता है, सॉरी, दिमाग कुछ चाहता है और बॉडी कुछ चाहता है. वी वांट स्टार्ट बिजनेस बट वी लव स्लीपिंग. हम चाहते हैं कि कुछ नया स्टार्ट करे. दिमाग बोल रहा है कुछ स्टार्ट करो, लेकिन बॉडी बोल रहा है नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, आज थोड़ा सा सोने का मन कर रहा है. There's always a divided self. We want something but we do something else. ये हमारे खुशी को कहीं ना कहीं डिवाइड करता है, क्योंकि जब हम अपने दिमाग के हिसाब से नहीं चलते हैं, हमारा दिमाग हमें हमेशा बोलता है कि you are doing something wrong. So this is called divided self. Any question on this? You know, this is the internal conflict. So internal conflict होगा तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे. You will never be happy. लेकिन हम देखें, ये तो होता ही है कन्फ्लिक्ट, तो हम इसको कम कैसे करें? मतलब माइंड को ज्यादा कैसे सुने, क्योंकि माइंड जो होता है वो राइट डिसीजन ही देता है बॉडी से. तो उसको कैसे सुने, तो कम कैसे करें? conflict कम करो. जो माइंड बोल रहा है उसको आंख बंद करके करो. It's not easy. See, मैंने क्या बोला? We are not discussing on the secret. We are discussing why we are not happy. It's not, यहाँ पे हम लोग how to do it नहीं. Yes, आप conflict कम करो. जो सोचते हो वही करो. खराब लगे भी तो वही करो. आंसू आए भी तो वही करो, because your mind says this is right. हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वो करते हैं जो हमारे लिए easy है. तो भाई सुबह उठो, आपको इजी जो लग रहा है आप सोचो कि भाई इसको करने से खराब होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, आई शुड वर्क आउट. सो जितना इंटरनल कन्फ्लिक्ट होगा, हमारा हैप्पीनेस, वहां पे एक रेजिस्टेंस पैदा होगा हैप्पीनेस और हमारे बीच में. ऑलवेज रिमेंबर दिस डिवाइडेड सेल्फ इज वेरी डेंजरस. आप जो सोच रहे हो अगर आप कर पाओ, बहुत लोग सोचते हैं मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, लेकिन दिमाग में है कि यार मैं अभी जॉब नहीं छोड़ सकता. तो हमेशा क्या होगा, वो जॉब भी करेगा और दिमाग में हमेशा टेंशन लेगा कि काश मैं बिजनेस कर पाता. So these are the problems, you know. So internal This conflict is very common. Yeah, this is common. Yes, of course. These are very common. That's the reason most of the people, they are suffering this. Okay, let's see the next one. The big idea number 2. Happiness origins. Happiness comes from outside and inside both. Desire creates suffering. Suffering is brought out by attachments. एक होता है कि मेरे को ना लाइफ में कुछ चाहिए, अगर वो मुझे नहीं मिलेगा ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. दिस इज रॉन्ग. मेरे को लाइफ में चाहिए,
इट्स ओके फाइन, बट उस चाहिए जो है उसके साथ अगर मैं अपना अटैचमेंट कर लूंगा कि मुझे चाहिए ही चाहिए, ये हो गया अटैचमेंट। At any cost. एट एनी कॉस्ट, ये बहुत डेंजरस होता है। ओके, आई वांट टू अचीव दिस, बट कैसे भी मेरे को चाहिए, वो अटैचमेंट इज नॉट, किसी चीज के साथ अटैचमेंट होना इज वेरी डेंजरस। बहुत लोग बहुत चीजों के साथ अटैचमेंट करते हैं। अगर आपकी मोबाइल अगर गिर जाती है, गिर के टूट जाता है, तो आपको कैसा लगेगा रिशिता? सर बुरा लगेगा, लेकिन उतना भी नहीं, बहुत बार टूट चुका है सर। मैं एक्चुअली ना किसी भी मटेरियलिस्टिक चीजों में उतना अटैचमेंट नहीं रखती हूँ सच में, लेकिन मेरा प्रॉब्लम जो होता है ना वो पर्सन वाइज होता है, क्योंकि मैं पर्सन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती हूँ, हाँ, इसलिए तो कोई भी हो, बुरा लगता है। अटैचमेंट विल मेक यू क्राई। यस, मेरे को वो चाहिए, मेरे को चाहिए वो मेरे को सुबह फोन करे, दोपहर फोन करे, शाम फोन करे। मुझे चाहिए कि वो मेरे को सुबह गुड मॉर्निंग बोले या गुड नाइट बोले। देयर आर मेनी थिंग्स, आई एम वर्किंग Sir, आउट राइट नाउ। possessive. हाँ कोई अगर possessive है किसी का, हाँ, ये पोजेसिव नहीं है, लेकिन ये पोजेसिव बना देता है इंसान को। that's what I'm trying to Yes, say. it will lead to that possession, you know, possessive हो जाने से तो वो they will start asking for it, they will try to grasp it. So अभी वो grasping वाले जगह पे नहीं है, अभी है कि नहीं मेरे को चाहिए। नहीं सर, अभी वो देखो एक चाहिए होता है वाला भी कि नहीं है, मैं ठीक हो गई कभी। okay, that's good, you know, मुझे अच्छा लगेगा अगर कोई मुझे गुड मॉर्निंग बोले, बस यहीं तक रखना है। अब वो अगर गुड मॉर्निंग नहीं बोले तो उसको लेके सोचना नहीं है, बिकॉज देयर आर सो मेनी रीजन व्हाई पीपल say good morning or they don't say good morning. There could be a lot of problems. Okay, so attachment is dangerous. चाहे वो इंसान के ऊपर हो, बहुत लोग ना शर्ट को लेके भी अटैचमेंट, शर्ट ड्रेसेस को लेके, ये जो ड्रेस है ना मैं एक स्पेशल इवेंट में पहनूंगी। अब वो स्पेशल इवेंट आएगा कब? बहुत लोग सोचते हैं कि अभी तो कोरोना के टाइम में अच्छा अच्छा जो ड्रेस है ना वो मैं अच्छे से अलमारी में रखूंगी, अभी घर पे हूँ तो नॉर्मल ड्रेस चलेगा। क्यों भाई? इफ यू आर कमिंग फॉर क्लास, पीपल आर लुकिंग एट यू, सो यू शुड बी एज ब्यूटीफुल एज यू आर। तो इट इज इम्पोर्टेंट ना, किसी चीज को अंदर मत रखिए, वो अंदर रहते रहते ना वो कभी कभी प्रॉब्लम कर सकता है, फिर वो जब आप निकालोगे अल्टीमेटली तो पहनने के काबिल नहीं रहेगा वो। इसलिए कोई चीज से अटैचमेंट नहीं रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। सो यहाँ पे वही बोल रहा है कि हैप्पीनेस ऑरिजिन्स, हैप्पीनेस कम फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड बोथ, डिजायर क्रिएट सफरिंग, सफरिंग इज ब्रॉट आउट बाय अटैचमेंट। अटैचमेंट नहीं होगा तो सबसे बेस्ट है। हस्बैंड वाइफ में अटैचमेंट अगर ना हो, अगर दोस्ती हो, तो वो रिलेशनशिप और बेटर होगा। अटैचमेंट मतलब सामने वाला रो रहा है तो मैं भी रो दिया, कहाँ मेरे को संभालना है, मैं भी अगर रो दिया तो नहीं चलेगा ना, सब लोग अगर रोते रहेंगे तो संभालेगा कौन? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ये सब सुनने से लोगों को लगता है कि ये इंसान के अंदर ना कोई फीलिंग नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू फीलिंग है, लेकिन मैं इमोशन है, इमोशनल नहीं होना चाहिए। इमोशन होना चाहिए, लोग को समझो कि क्या गुजर रहा है उसके बीच, लेकिन उसके सफरिंग को देख के खुद सफर करोगे ना तो फिर उनको हेल्प कौन करेगा? ओके, लेट्स गो अहेड। हैप्पीनेस ऑरिजिन्स, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो मैंने ये थोड़ा हाइपोथेसिस है, थोड़ी पढ़ाई जैसे हम लोग करते हैं ना पीएचडी की, यू नो लाइक दैट हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा फास्ट है। हैप्पीनेस सेट पॉइंट्स, हैप्पीनेस सेट पॉइंट्स। सो ऋषिता जी, आप अभी बार बार ऋषिता, चलो देवाशीष, व्हाट यू वांट नाउ, अगर आपको अभी कोई बोले कि आपको क्या चाहिए तो नहीं, आपका क्या टारगेट है? इफ आई टॉक अबाउट मटेरियलिस्टिक, Ultimate success.
नहीं, I'm talking about materialistic. You talk about some specific thing. Yeah. A 4-wheeler. 4-wheeler, right? आपको क्या लगता है? तो जैसे देवाशीष को लग रहा है कि 4-wheeler उनको चाहिए, तो ऑफकोर्स जब 4-wheeler मिलेगा उनको काफी खुशी होगी, लेकिन वो खुशी कब तक रहेगी? उसका भी तो एक सेट पॉइंट है. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. वो खुशी रहेगी 1 साल 2 साल, उसके बाद उनको लगेगा कि मेरे पास और बड़ा गाड़ी होना चाहिए. सो यस, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये खराब है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हर खुशी का एक सेट पॉइंट होता है. आप जब खुश होगे कोई चीज को लेके, आई एम टॉकिंग अबाउट मटेरियलिस्टिक, तो उसका एक सेट पॉइंट होगा. हैप्पीनेस सेट पॉइंट, वी अडॉप्ट टू सेट पॉइंट. न्यू टीवी वीक 1 इज ह्यूज, यू नो, पहला वीक बहुत बड़ा टीवी है, अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे दिन जाता है वो टीवी भी छोटा लगता है. So any reason to happiness are the reason which stays for some times. आप अगर कोई चीज को लेके खुश होते हो, कोई रीजन से खुश होते हो, तो वो रीजन ज्यादा दिन तक आपके लाइफ में नहीं रहेगी, क्योंकि कोई भी रीजन ज्यादा दिन तक नहीं रहता. Can happiness be for no damn reason? Can happiness be for no damn reason? Yes. सोनी जी, क्या लगता है आपको? क्या हैप्पीनेस ऐसा हो सकता है कि हम खुश हों और खुशी का कोई रीजन ना हो? यस सोनी जी, आप थोड़ा अनम्यूट करके बोले. यस सर, हो सकता है. अगर हम अपने आप से खुश होंगे तो हैप्पीनेस हर पल मिलेगा उससे. देखो, अगर रीजन रहेगा तो रीजन अभी है, खुश हूँ, कल नहीं रहेगा. लेकिन अगर कोई इंसान खुश है इवन विदाउट, अब देखो कोई विदाउट रीजन तो होता नहीं है. हम लोग जी रहे हैं, ऑक्सीजन चल रहा है, ये सब भी तो रीजन हो सकता है. जब मैं खुश होता हूँ, मेरे शक्ल में स्माइल होता है, वो भी तो रीजन हो सकता है. सो ऐसा रीजन खोजो जो 24 घंटा आपके साथ रहे, कभी आपको छोड़ के ना जाए. NLP Day 6. यस देवाशीष. NLP Day 6. यस, NLP Day 6. मैंने अभी देखा नहीं है, फिर तक देखा. आप अपने खुशी को जब चाहो क्रिएट कर सकते हो. Yes, that's what it is. Yes. Okay. हैप्पीनेस फॉर्मूला, अगर सोचिए आज आपको एक फॉर्मूला मिलता है कि चलो भाई आप खुश होने का अगर मेरे पास एक फॉर्मूला हो तो कैसा रहेगा? एक फॉर्मूला है, बहुत अच्छा होगा सर. वही ये फॉर्मूला याद रखना, आपको हमेशा खुशी देगा. H = S + C + V. ये फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए एंड हमेशा खुश रहिए. Okay, what exactly it is? Happiness is equal to set points plus conditions plus voluntary actions. Happiness is equal to set points plus conditions plus voluntary actions. Can anybody tell me this? If अगर किसी को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो. If anybody. Happiness is set points means the goals we already thought about. Matlab, for example, if I'm targeting for something, this is the set goal for me, for making the conditions better to achieve my goal, and the voluntary actions, the struggle what I have to do for it, for achieving my target is happiness. Absolutely right. Very good, Dipanshi. You have said the right thing. यहाँ पे सेट पॉइंट्स है जो आपने बोला. हर इंसान का एक गोल होना चाहिए. जैसे ही वो गोल को अचीव करेगा तो वी टॉक्ड अबाउट सेट पॉइंट्स. अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि इंसान के लाइफ में जैसे देवाशीष चाहते हैं कि उनके पास एक कार हो, तो उनका एक सेट पॉइंट. कंडीशन है उनका करंट लाइफ, जो भी जैसे भी चल रहा है, उनका करियर, उनका घर, उनका वेल्थ, वो है कंडीशंस. अब प्लस वॉलेंट्री एक्शन मींस वो क्या कर रहे हैं अपने उस सेट पॉइंट्स को पाने के लिए और अपने कंडीशंस को बेटर करने के लिए. व्हाट आर द एक्शंस दैट पर्सन इज डूइंग
ऐसा कहा गया है कि जो लोग, बहुत लोग बोलते हैं बहुत काम है, बहुत बिजी हूँ। नॉर्मली देखा गया है ना कि जो लोग अपने कंडीशंस को बेटर करने के लिए एक्शन करते हैं, वो लोग ज्यादा खुश रहते हैं रादर देन वो लोग जो अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं और कुछ नहीं करते। That means how much you are working on your goal. Yes, how much you are working on your goal and how much you are working to improve your conditions. आपके लाइफ में अगर कोई गोल है और ऐसे कुछ कंडीशंस है जो अच्छे नहीं है, आपको उनको अच्छा करना है, और प्लस आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, अगर ये तीन चीज आपके लाइफ में है तो आपको मान लेना पड़ेगा कि आप बहुत खुश इंसान हो, क्योंकि आप एक्टिव हो, आप एक्शन कर रहे हो, आपके लाइफ में चेंज आएगा ही आएगा। वो हैप्पीनेस पॉइंट, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पॉइंट आएगा ही आएगा। कुछ लोग हैं जो अभी सोच रहे हैं कि अभी जो हालात है बाहर का वो फेवरेबल नहीं है, तो अभी क्या हो रहा है पता है, ये जो सिचुएशन है जहां पे अभी बहुत लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, बहुत लोग प्रॉब्लम्स में हैं, यहां से कुछ हीरोज निकलेंगे, कुछ नए हीरोज निकलेंगे, कुछ नए ऐसे लोग निकलेंगे जो लोग उस कंफर्ट जोन में हो सकता है थे कुछ दिन तक, अब वो लोग को लग रहा है कि नहीं अभी मुझे कुछ करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि अंदर से पुश करते हैं हम लोग, तो ये एक इंटरनेशनल पुश है जो हमें मिला है। लेकिन कभी कभी हम अंदर से भी अपने आप को जो पुश करते हैं ना, अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने कंडीशंस को बेटर करने के लिए, तभी हम हैप्पी भी होते हैं। सो आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा हीरोज लोग यही स्कैरसिटी वाले सिचुएशन से ही उभर के आते हैं। सो अगर आपको लग रहा है कि अभी प्रॉब्लम में है इंसान, दिस इज द राइट टाइम टू चेंज योर स्टोरी, दिस इज द राइट टाइम to set a point to improve your conditions and take some voluntary actions. This is the right time. क्योंकि ये करने में आपको इतना मजा आएगा ना, you will feel happiness inside you. Yes, till now any question? So yes, tell me, love are of two types. One is passionate, one is compassionate. So Dipanshi, what do you feel about passionate and compassionate? According to me, maybe passionate means if you are involved or if you are into your love in a very less time, maybe in 6 months, maybe in 2 or 3 months, you just into that person. Or compassionate means understanding everything, matlab thinking practically about that situation, then you are coming into, yeah, then you are into that person. It takes lot of time for compassionate love. Okay, yeah, Rishita. No, I don't have any idea regarding this passionate and compassionate love. Yes, Soni ji. Yes. Any idea? No, sir. Okay, चलिए कुछ इसके बारे में जानते हैं. So right now we are talking about number 5, that is called love and attachment. So love of two kinds. अब ये अच्छे से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, पैशनेट और कंपैशनेट. उससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं मैं क्या फील करता हूँ पैशनेट और कंपैशनेट में. पहले आप मीनिंग बता दीजिए ना पैशनेट. हाँ, मैं वही मैं सोचा कि एक बार मैं मीनिंग को बता दूं. पैशनेट लव, वो तो बहुत वो होता है ना कि उत्साही होना, आई एम बहुत enthusiastic of doing anything. एब्सोल्युटली. जब प्यार होता है ना तो लगता है कि यार उससे मिले, उससे बात करे, बात नहीं हो तो मजा नहीं आता है, एकदम लगता है कि कब उससे फिर मुलाकात होगी. जब मुलाकात होता है तो बहुत बातें करना, यू नो, एक लव मेकिंग करना, लगता है कि उसको छोड़ना ही नहीं है, उसको पकड़ के रखना है. दीज आर कॉल्ड पैशनेट. एक अलग पैशन होता है उसमें. लोगों को भी दिखता है यार देखो कितना कितना एक्टिव है, कितना एंथुजियास्टिक है दोनों एक दूसरे के साथ. और दूसरा होता है कंपैशनेट. कंपैशनेट का मतलब होता है कि दे बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग ईच अदर. दे बिलीव
दे आर फ्रेंड टू ईच अदर। उनको लगता है कि एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है। एक दूसरे को जब भी एक इंसान बोलेगा कि ये रीजन से मैं ये नहीं कर पाया, दूसरे इंसान उसे अच्छे से समझेगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसको सवाल नहीं करेगा, उसको जो भी बोला जाएगा वो उसे समझेगा। आज अगर मेरा दोस्त बोलता है कि ये हुआ, हम लोग उससे प्रूफ नहीं मांगते हैं, लेकिन जब प्यार रिलेशनशिप होता है ना तो प्रूफ मांगा जाता है। जैसे जैसे देखो, अगर जैसे क्या होता है, बहुत समय देखा गया है कि एक पार्टनर बोलता है कि दूसरे पार्टनर का फोन चेक करता है, कौन किसने फोन किया, किसने एसएमएस किया, कब तुम कहाँ थे। तो ये सब क्या है, दे आर बेसिकली अटैच टू देमसेल्फ। इतने अटैचमेंट हो गया कि उनको लगता है कि वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी है। दे आर ऑलवेज एक्टिव लवर्स, एक्टिव लवर्स, वी कॉल इट एक्टिव लवर्स। और ये सब नॉर्मली हमें मूवीज वगैरह से ज्यादा सीखने को मिलता है, क्योंकि मूवीज में इतना टाइम नहीं होता है कि वो कंपैशनेट दिखाए, और कंपैशन दिखाएंगे मूवीज में ना तो लोग देखने नहीं जाएंगे। तो उसमें भी क्या होता है कि अच्छा अच्छा गाना होता है, गाना में डांस होता है, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, देयर आर लॉट ऑफ सॉन्ग्स, सो दीज आर वेरी पैशनेट। कंपैशन में ना उतना एक्साइटमेंट नहीं होता है। कंपैशनेट में अंडरस्टैंडिंग होता है, कंपैशन में फीलिंग होता है कि मैं किसी को ट्रस्ट करता हूं, कोई मुझे ट्रस्ट कर रहा है। सो कंपैशन वो चीज होता है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। सपोज एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। कंपैशन लव क्या होता है? आई थिंक बहुत समय अगर हस्बैंड वाइफ को बोलता, तो हस्बैंड को पता चला कि वाइफ किसी से बात कर रही है, तो हस्बैंड अपने वाइफ से पूछता है किससे बात कर रहे थे? तो वाइफ ने बोला कि किसी इंपॉर्टेंट एक इंसान से बात कर रहे थे। तो हस्बैंड ने समझा, वो उतना ही समझा जितना उसको बोला गया। अच्छा, वो एक इंपॉर्टेंट इंसान से वो बात कर रही थी। अब अगर वो लव एंड अटैचमेंट होगा तो इंपॉर्टेंट इंसान से बात कर रही थी, मेरे से भी इंपॉर्टेंट इंसान हो सकता है। So there are a lot of things, when somebody is in deep love. लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है किसी दो पार्टनर में एक का होगा पैशनेट, दूसरे का कंपैशनेट, ऐसा भी तो देखा जाता है, तब तो प्रॉब्लम होता है सर। तब प्रॉब्लम होता है, और या तो इधर या तो उधर हो जाता है, या तो उसको पूरा एग्रेसिव होना पड़ता है, या तो पूरा कंपैशन में जाना पड़ता है, नहीं तो वो ब्रेकअप हो जाता है वहीं पे। दोनों को लगता है कि दे आर नॉट काइंड ऑफ माई टाइप्स। आज के जमाने में कंपैशनेट लव देखने को नॉर्मली मिलता नहीं, बहुत कम, मतलब रेयर होगा, क्योंकि वो दिखेंगे भी नहीं, वो अलग अलग लाइफ में रहेंगे। कभी जब बात होगा, जब मिलना होगा, उसको लेके उतना वो लोग एग्रेसिव नहीं होते एक दूसरे को लेके। एक फ्रेंडशिप जैसा एक रिलेशन ज्यादा होता है, बट एक फीलिंग रहता है, दैट वी लव ईच अदर, वी रेस्पेक्ट ईच अदर। ऐसा होना चाहिए। पैशन मतलब तुम मेरी हो, काइंड ऑफ, तुम मेरी हो वाली बात रहता है ना। और कंपैशन मतलब होता है कि मैं तुम्हारा हूं। जब हम लोग बोलते हैं ना मैं तुम्हारा हूं, तो मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। जब लोग हम बोलते हैं ना तुम मेरी हो, तब एक्सपेक्टेशन आता है। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग। लेकिन sometimes we heard the things that expectation is normal in any relationship. Is it, sir? वो लोग जो एक्सपेक्टेशन करते हैं वही लोग ये ज्यादा बोलते हैं। ओके, लेकिन कभी कभार हो जाता है कि कुछ मतलब हो जाता है प्रॉब्लम। अरे होता है, मैंने 98% होता है एक्सपेक्टेशन, तो 98% होता है, तो इसीलिए लोगों को लगता है यही नॉर्मल है। 2% में वो एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, फिर भी दे स्पेंड। आज अगर मेरा दोस्त मुझे फोन नहीं करता है तो मुझे उतना खराब नहीं लगेगा। आप सोचो, आज अगर मेरी मम्मी दूर में, आज अगर मेरी मम्मी फोन नहीं करेगी तो क्या मुझे बुरा लगेगा? नहीं ना। नहीं। लेकिन आप सोचो, आप में और मम्मी में कितना डीप अटैचमेंट है, फिर भी आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हो। इमेजिन।
और आप एक ऐसे इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हो जो चंद दिनों में आया है और उसके साथ आप पैशनेट बनने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट इज वो नहीं रहेगा ज्यादा दिन तक। यस और वो रह भी गया, expectations hurts ना। एक्सपेक्टेशन तो ऑलवेज हर्ट्स, ऑलवेज हर्ट्स। एक्सपेक्टेशन होता नहीं है, रखना। हर्ट भी होता है, और सर हमको ना वो समझने का शक्ति भी खत्म कर देता है, और कुछ छोटा छोटा बात में रिएक्टिव हो जाते हैं हम लोग, जो मतलब लेकिन कोई एक बार वो धक्का खाना जरूरी है, तब आप समझ पाओगे कि दोनों धक्का में तो सर डिफरेंस बहुत है। ज्यादा धक्का खा लिया सर। बहुत ज्यादा लेकिन या now बहुत it's- बार? हाँ बहुत बार शायद, लेकिन अभी ठीक है, अभी वो धक्का वाला कुछ बात नहीं है, क्योंकि अभी मैं समझ गई सर पूरा अच्छे से। अब देखो, ये देखोगे तो और समझ जाओगे और बोलोगे थैंक गॉड। समझ में ना आए तो मुझे बताना। ये 6 मंथ का सर्वे रिपोर्ट है बिटवीन पैशनेट लव एंड कंपैशनेट लव में। 6 मंथ्स का ये रिपोर्ट है। This is the, are you people understanding the chart? यस सर यस। We can see जो रेड लाइन है वो पैशनेट है। वो पैशनेट में क्या होता है, वो इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, डीप लव में चला जाता है कि यू कैन सी द चार्ट इज गोइंग फ्रॉम अप एंड ऑल, लेकिन एक टाइम में ब्रेक इवन आता है, वो फिर नीचे की तरफ जाने लगता है। एक एंड पॉइंट आता है, उसके बाद नीचे की तरफ जाता है, फिर झगड़ा झगड़ी होता है, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते 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 अल्टीमेटली जो येलो वाला लाइन है वो कंपैशन वाला लाइन है। कंपैशन आस्ते आस्ते चलता है, आस्ते आस्ते चलता है, लेकिन एक टाइम पे वो अग्रेसिव जो रहता है ना, जो पैशनेट लव होता है, वो एक टाइम में इवन उसके भी नीचे चला आता है कंपैशनेट लव के। अब आप बोलोगे नहीं सर, शादी हमने देखा है, पैशन भी था लेकिन शादी भी हो गया। तो शादी हुआ तो हुआ, बात है कि एक दूसरे के साथ वो लोग कितने अटैच्ड हैं, कितने अटैच्ड होके भी अटैच्ड नहीं है, काइंड ऑफ जो हम लोग कंपैशन वाली बात कर रहे हैं। अटैच्ड होके भी अटैच ना होना हो सकता है, जेनेट मतलब बायोलॉजिकल है या एक दूसरे से रिलेटिव है तो एक अटैचमेंट है, लेकिन मेंटली कोई अटैचमेंट नहीं है, राइट? सो यू कैन सी द चार्ट। ये तो है 6 महीने का चार्ट। आई शो यू कि 60 इयर्स का चार्ट। 60 इयर्स, 6 months to 60 years. Passion creates deep love, बहुत ही डीप। $60 years survey report, passionate versus compassionate love. लेकिन This सर हमको was- कंपैशनेट लव तो बहुत कम दिखने को मिलता है ना सर, हाँ, सब लोग वो तो रेयर होता है। गार्गेंचुअन पर्सनालिटी एडवांटेज के पीछे नहीं भागते ना। देखो, कुछ लोग शादी करने के बाद सीखते हैं, कुछ लोग शादी के पहले सीखते हैं। तो आप लोग में जिसकी इसकी शादी हो गई है वो लोग सीख जाएं, जिनकी शादी नहीं हुई है उनके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है लाइफ को देखने का। और लोगों को जज करने का भी। जज का भी नहीं है सर, वो ना कुछ बात होता है जो मतलब वैसे आपको लगता है कि जब वो मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, जब पैशनेट होता है ना तो फर्स्ट वो जो होता है ऐसा टाइप का चीज, मुझे लगता है कि हाँ ये हो रहा है, तो वो कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन एक टाइम आता है जिसके बाद पता चलता है नहीं जो मैं कर रही थी वो सच में गलत था। तो सॉरी बोल देना जिसके साथ भी आप कर रही थी। हाँ सॉरी बोल चुकी हूँ सर बहुत बार। शाबाश। चलो बस, और एक्सपेक्टेशन मत रखना ज्यादा। चलिए, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। सो वी कॉल इट, compassionate is basically a spiritual love, is an outstanding level of love। बहुत कम लोग इस लेवल में पहुंच पाते हैं। ये लेवल ऐसा है ना कि जब दूसरे को लगता है कि एक दूसरे के सिवा भी वो लोग रह सकते हैं और एक दूसरे के साथ भी वो लोग बहुत खुश हैं।
दोनों पकड़ के नहीं रखें, एकदम खुला रखें। और जब आप खुला रखोगे ना तो रह जाता है इंसान, जब बंद करने जाओगे तभी उड़ जाता है इंसान। This is a very strange thing. Okay, let's go ahead. Happiness suckers. आपके हैप्पीनेस को सक करने के लिए कौन कौन बैठा हुआ है? Let's see. Noise. बहुत लोग ना नॉइज में ज्यादा रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। ऐसा कहा गया है कि अगर आपको थोड़ा सा मन की शांति चाहिए ना, तो थोड़ा शांत वातावरण का भी बहुत जरूरत होता है। जिनके लाइफ में बहुत नॉइज है, फिजिकल नॉइज भी, मेंटल नॉइज भी। फिजिकल नॉइज मतलब जहाँ पे वो रहते हैं उसके आजू बाजू बहुत ज्यादा आवाजें होती हैं, चाहे वो इंसान का किया हुआ आवाज हो या गाड़ी का आवाज हो, कुछ भी। दिस नॉइज इज समवेयर affecting our happiness. Even commute time. What is commute time? आने जाने का समय। कहीं पे जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो कम्यूट टाइम में देखा गया है कि बहुत लोग ये कम्यूट टाइम में ज्यादातर उसको यूटिलाइज नहीं करते। हम लोग ने गार्गेंचुअन पर्सनालिटी में 60 मिनट्स, यू नो, yes, you said something. WTC यूनिवर्सिटी सर, 60 ये minutes. WCT यूनिवर्सिटी, ये 60 मिनट्स को हम लोग अगर जब इधर उधर जा रहे हैं, अपने कोई किताब या कोई ऑडियो अगर सुनेंगे, तो वी कैन रिलैक्स आवर माइंड, वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स। तो कम्यूट टाइम को यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग कम्यूट टाइम में बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं। लैक ऑफ कंट्रोल, कोई चीज पे अगर कंट्रोल नहीं होता है, मुझे पता है कि नहीं करना है लेकिन आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, these are some happiness suckers. Some people, they live by shame, live with shame, some guilt, very low self image. Self image के बारे में आप लोग को मतलब क्या पता है? या देवाशीष, what is self image? Self image is inner image. Self image, क्या बताए? सेल्फ इमेज है जो मैं देख सकता हूँ मेरे अपने बारे में, द अनटोल्ड थिंग्स which I personally only know about me is that image, which the past, anything happened in the past, and that is known by me only, nobody else knows, and that thing knocks for a whole time, for the entire life. Okay. Yeah, Rishita, self image, have you heard this word? Yes sir, yes. Self image is the image which we where we know ourselves personally, where we are not sometimes we call that lowering the self image. It means when we have doubt on us, that means lowering the self, it means we are lowering our self image. तो self image का मतलब वही है जो अपने बारे में हम क्या जानते हैं। Absolutely, absolutely. So बहुत लोग हैं जो आज कोई रीजन से अपने आप को शेम फील करते हैं, या कोई गिल्ट है उनके लाइफ में, कुछ ऐसा हुआ है। तो ये जो शेम एंड गिल्ट होता है ना, अगर किसी के लाइफ में है, किसी के दिमाग में है, तो उसका जो सेल्फ इमेज होगा वो बहुत डाउन होगा। और सेल्फ इमेज अगर डाउन होता है ना, इट विल हैम्पर योर हैप्पीनेस, इट विल हैम्पर योर हैप्पीनेस। Dysfunctional relationships. Yes, this is also a happiness sucker. जब बनता नहीं हो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, it gives a lot of pain to them, both of them, बहुत ज्यादा पेन होता है जब एक दूसरे रिलेशनशिप में खुश नहीं होते हैं, कोई रीजन से भी हो। These are some of the points why people are not happy today, due to a lot of things, due to shame, due to dysfunctional relationship, due to lack of control. वो जानते हैं कि मुझे कंट्रोल करना चाहिए लेकिन नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। नॉइस, these are some happiness suckers.
तो अब सकर्स है तो हैप्पीनेस बूस्टर्स भी होंगे। अगर कोई चीज है जो हमारी हैप्पीनेस को घटा सकती है तो बहुत सारी चीजें होंगी जो हैप्पीनेस को बढ़ा भी सकती हैं। ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग मैरिज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट event in our life, so it really gives you a lot of good feeling, you know, बहुत relaxation मिलता है जब एक दूसरे को लगता है कि yes we are made for each other. Strong marriage happens between strong people. Physical touch, this is very important. Physical touch, you know, किसी को हक करना, किसी को शाबाशी देना, these matters, you know, these जब आप किसी से हैंडशेक करोगे, बोलोगे yes you can do it, आप किसी के कंधे में पैट करोगे, this touch makes people happy. हक करना, it makes people happy. Of course meaningful relationship, जब आपको लगेगा ना कि आप लोग कि जो दोनों की रिलेशनशिप है वो बहुत मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल मतलब आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, आप एक दूसरे के पर्पस में कंट्रीब्यूट करते हो। मेरा एक पर्पस है, उसमें मेरी पार्टनर मुझे हेल्प कर रही है, मेरी वाइफ की कोई मतलब पर्पस है, मैं उसको हेल्प कर रहा हूं। देयर इज अ मीनिंग व्हाई दैट पर्सन इज देयर विथ मी। व्हाई, अगर हम लोग पार्टनर हैं, व्हाई वी आर टुगेदर, we should find some reason why we are together. ज्यादातर लोग बोलेंगे because हमारे बच्चे हैं। So of course biologically yes, that is the reason, that is one of the meanings, लेकिन that is not that fulfilling meaning नहीं है। ये meaning से वो मजा नहीं आता है। जब एक दूसरे के पर्पस में हम हेल्प करेंगे, साथ देंगे, तब मीनिंग आएगा। रिलीजन, यू नो, ये मैं बताऊं, कुछ लोग जो थोड़े रिलीजियस होते हैं, आप देखोगे वो नॉर्मल लोगों से थोड़ा ज्यादा खुश होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग रिलीजियस बन जाओ, साधु महात्मा बन जाओ, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अब हम लोग नहीं बन सकते, तो हमें बीच में रहना है कि एकदम ज्यादा भी डिजायर में नहीं जाना है और एकदम नो डिजायर में भी नहीं जाना है। एकदम बैलेंस लाइफ लीड करना है, इच्छाएं रखनी है, अपनी डिजायर रखना है, उसके लिए वॉलेंट्री एक्शन लेना है, लेकिन ऐसा नहीं कि अटैच हो जाए, अगर वो ना मिले तो हमें दुख हो। सो एटलीस्ट एक बैलेंस लाइफ में। पूरा रिलीजियन तो अभी हम लोग रिलीजियस नहीं बन सकते, सो ज्यादा रिलीजियस भी नहीं बनना है, ज्यादा यू नो, ऐसा देखा गया कि वेस्टर्न पीपल उनके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, बट दे आर नॉट हैप्पी। सो ज्यादा भी कोई चीज सही नहीं है और एकदम कम भी नहीं है, हमें नॉर्मली एक बैलेंस लाइफ लीड करना है। नंबर 8, वैल्यू कंस्ट्रेंट्स। वैल्यू कंस्ट्रेंट्स, see, we are not talking about positive attitude, we are talking about some real meaning, some real thesis on happiness. Why people are happy, why people are not happy. Value constraints, what does it mean? इसके टाइटल से क्या लग रहा है? Anyone? Our priorities. Yes, what? Our priorities. Priorities, okay. Okay, yeah, Soni ji, any idea? सर वैल्यू मतलब जिस टाइम वो इम्पोर्टेंट होता है। Okay, yeah, Devashish, value constraints, किसी को भी अगर क्लियर है थोड़ा भी। Okay, constraints, constraints means what? Resistance, problems. Value constraints, more constraints, more challenge, more values to face, much better life to lead.
more constraint, more challenge, more values to face, much better life to lead. देखा गया है कि आज के लाइफ में जो लोग खुश हुए हैं उनके लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम आए हैं. So guys, it has been seen कि जिनके लाइफ में कंस्ट्रेंट होते हैं ना वो लोग लाइफ में बेटर कर पाते हैं. और ऐसा देखा गया कि जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स कम है वो लाइफ में भटक जाते हैं. क्योंकि प्रॉब्लम्स इसलिए कम है क्योंकि उनका पर्पस ठीक नहीं है या डिसाइडेड नहीं है, इसीलिए वो भटकते बहुत जल्दी है. पर जिनके लाइफ में पर्पस है उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन वो जितना उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, वैल्यू करते हैं, देखा गया कि उनके लाइफ और बेटर होता है. इसीलिए वैल्यू कंस्ट्रेंट्स. लाइफ में कभी ऊपर वाले को नहीं बोलना कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्यों दिया, बिकॉज द मोर यू हैव दैट द मोर बेटर यू कैन गो. कंस्ट्रेंट्स गिव हैप्पीनेस. क्योंकि ना जैसे जैसे कंस्ट्रेंट को आप ओवरकम करते हो आपको और अच्छा लगता है. प्रॉब्लम जैसे ही आप सोल्यूशन करते हो यू फील मच बेटर. बिग आइडिया नंबर 9, गोल्स. सो वी हैव टोटल 10 इन नंबर्स. हम लोग काफी नजदीक आ गए हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वन ऑफ माय फेवरेट, हाउ वी अटेन आवर गोल. प्री गोल्स striving versus post goal striving. We get more pleasure from making progress towards our goal than we do from achieving them. ये बहुत important है. इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा. एक रिसर्च में देखा गया है जो लोग एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, एस्ट्रोनॉट्स दे गो टू स्पेस. उनको एक पर्पस दिया जाता है कि उनको स्पेस पे जाना है, उनको स्पेस में रिसर्च करना है. और उनको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हर इंसान चाहता है कि स्पेस में जाए और कुछ करे. एंड दे व्हेन दे डू इट, उसके बाद जब वो लोग लौट के आते हैं तो ऐसा देखा गया कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स भटक जाते हैं. उनको समझ में नहीं आता है कि अब क्या करना है. इतना बड़ा तो हमने कर लिया, वहां पे स्पेस में रहना था, रह लिया, काम किया, अब क्या करना. और वो इतना बड़ा लेवल से होके आते हैं ना तो उनको छोटा लेवल दिखता नहीं है. उनको लगता है कि इससे आगे तो हम और जा ही नहीं सकते, और क्या करेंगे. और यही सोच सोच के ना वो लोग ड्रिंक्स लेते हैं, वो लोग एक डिप्रेशन में पड़ जाते हैं. तो वही यहाँ पे बोला गया है कि प्री गोल स्ट्राइविंग, ये जो होता है ना, एक होता है प्लेजर फ्रॉम मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स आवर गोल. गोल तक पहुंचने के समय जो मजा होता है ना, वो मजा गोल के बाद नहीं होता है. आज हम लोग यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि सब उस जीपीए लेवल को अचीव करेंगे. ये जो करेंगे उसके लिए जो एफर्ट देंगे, क्लास कर रहे हैं, अपने लाइफ में चेंज ला रहे हैं ना, ये इंसान को ज्यादा खुशी देता है. क्योंकि जब आपको वो मिल जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं. उस समय भी आपको कुछ एक नया गोल करके, जब तक लाइफ में गोल है आपके लाइफ में खुशी है. गोल नहीं रहेगा तो आप भटक जाओगे. आप सोचोगे फिर मैं क्यों जिंदा हूँ, व्हाट शुड आई डू. एक गोल जरूरत है. और गोल को जब आप अचीव करने जाओगे ना, वो जो आनंद होता है, वो जो हैप्पीनेस होता है, दैट इज स्पेशल. So now my dear friend, this happiness hypothesis has come to an end with the last one, that is called happiness quote. Happiness quote. What is the purpose of life? Happiness is not something you can find, acquire or achieve directly. You have to get the condition right and then wait. Focus on what you can do. Get condition right. Keep improving, striving, accepting more. Certain level can force happiness. See, what does it say? It says happiness is what, happiness is just like get the condition right. जैसा हमने कहा था वो फॉर्मूला से, अपने कंडीशन को हमेशा सही करो. आपके लाइफ में जो भी घट रहा है,
अच्छा है तो बेटर है, अगर अच्छा नहीं है तो उसको सही करते रहो, अपने आप को इम्प्रूव करो। कैसे करोगे? थ्रू वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन मतलब अपने पर्पस के ऊपर काम करो और अपने लाइफस्टाइल को बेटर करो, अपने लाइफ के कंडीशंस को बेटर करो। अगर आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो रिलेशनशिप को बेटर करो, अगर वेल्थ में प्रॉब्लम है तो अपने वेल्थ को बेटर करो, अपने हेल्थ को बेटर करो। हैप्पीनेस इज जस्ट अबाउट गेट द कंडीशन राइट। अपने कंडीशन को अगर हम बेटर करेंगे, दैट्स बेसिकली द हैप्पीनेस। Happiness is not something you can find, acquire, and achieve directly. You have to get the condition right and then wait. Focus on what you can do, get condition right, keep improving and striving, accepting more. Certain level can force happiness. So life में अपनी conditions को better करना, voluntary action करना, जो चीज हम change नहीं कर सकते उसको accept करना, this will give you happiness.